Welcome everyone in the second part of our lecture number 1 about research. As I already explained in a very broad way about research, that research is the searching of a knowledge to find out new ways to solve the unsolved problem, right? So in a very short word, we can call a research which is based on the evidence, which is based on the proof, which we can validate, which we can collaborate. That one we will call a research. In that lecture, the mainly topic we will cover about the different type of a research, what are the different type, and what are the basic and essential part if you are going to start work on your research proposal. Okay, slide. What make us inspire and aspire? Things make us inspire if we can get new information. Okay, so it should also give you like give us some extra idea or like knowledge or like research which we don't know before. Okay, the third point is research can show you what most likely to address your issues successfully. And then the very last point, there should be, it should also provide us the anecdote. Like the very simple meaning is there should be a short story and there should be a limitation of your work, and it should be easily and acceptable in the reader's eye. Like for example, the whole your article, it should not more than 10 to 12 pages. It should not be a complete book. So we are going to deliver a very handy work, a very innovative and novel work, but within few pages, within limitation. Okay, if your research is going to satisfy the same procedure, then we will consider it as a research. It means that the finding, the limitation, in the conclusion, it should be quite conclusive. It should be quite in the limit. The next slide is research can confirm what you were already sure of. Like the second point is about cost and benefit argument, cost and benefit through which we can go more forward. Okay, so like I usually give this example to most of the student. रिसर्च हम इसको भी कह सकते हैं कि अगर किसी ने ऑलरेडी if anyone already reached to the level 18 and he want to go from 18 to 19, but he cannot come back from 18 to 17 because he already derived, discover all those thoughts, so he should go more forward. Okay, research give you credibility, uh, like your work will be reliable and you will have authority and you will have evidence to speak on like behalf of the same credibility. You can present, you can conclude something about your work, and it should also always address like a serious issue or the issue which we can face in the future, or the issue which maybe the whole generation, country, or humanity or people can face it. Okay, we have different sources of like research through which we can get some evidence, we can get some literature review, we can get some collection of data such as academic research. It could be interview, it could be survey, it may be studies, it may be some facts and figure and events, and maybe there should be some stories through which we can illustrate some of the conclusive remarks. So this is very important, and I would like to explain that each and everyone should have idea a little bit. Okay, so what is basically like research? We have three main types. One is application, second is objective, and third is inquiry mode. So it's quite clear from its name. The first one, application, the one which may be applied or the one which we can apply. Okay, so the pure research is which like in a very short word, to develop and test theories or hypothesis but may not practical application, जिसकी practical world में practicality में उसकी कोई application ना हो. इसकी example जो है, to measure or determine the stress level, or second, to measure people attitude,
और लाइक अट्रैक्शन लेवल। इसका मतलब ये है कि अब आप स्ट्रेस लेवल के लिए आपने फॉर एग्जांपल कोई पैरामीटर डिफाइन कर दिया, तो वो सिर्फ आपके मुताबिक है या आपके एनालिसिस या रिसर्च या किसी भी थ्योरीज या किसी हाइपोथेसिस के मुताबिक है, बट रियलिटी के साथ उसका कोई अमल दखल नहीं है। सेकंड है हमारे पास अप्लाइड रिसर्च। द रिसर्च in the applied research, the result data which can be applied, ठीक है ना। जैसे किसी डेटा के बेस पर हम लोगों ने एनालाइज करके कुछ इंटरप्रीट कर दिया, कुछ कंक्लूड कर दिया, तो हम उन्हीं के बेस पर वी आर गोइंग टू फॉर्मुलेट और पॉलिसी एट दी एडमिनिस्ट्रेशन लेवल और एट दी ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग लेवल। तो वो फिर अप्लाइड रिसर्च के कैटेगरी में आता है। अब सेकंड ऑब्जेक्टिव जो है, ऑब्जेक्टिव के फिर दो पार्ट्स हैं। नंबर फर्स्ट है डिस्क्रिप्टिव और सेकंड है हमारे पास एक्सप्लेनेटरी। अब डिस्क्रिप्टिव क्या है? अ स्टडी विच इंडिकेट सिस्टमेटिक सिचुएशन, विच इंडिकेट अ सिस्टमेटिक सिचुएशन। इसका एग्जांपल जो है कि आपने कोई सर्विस या कोई प्रोग्राम या फॉर एग्जांपल आपने ये चेक करना है कि कितने लोग जो है वो सेटिस्फाई है, लाइक सेटिस्फेक्शन लेवल ऑफ द पीपल, the service level of the people, the service ability of any object or of any facility etc. तो वो जो है हमारा उस कैटेगरी में आता है। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट को रिलेशन। देखो ये नाम से ही जाहिर है, जो हमारे पास बेसिकली रिलेशन की तरफ इशारा कर रहा है, विच को डिस्क्राइब द रिलेशन और एसोसिएशन और डिपेंडेंसी ऑफ एक से ज़्यादा जितने भी हमारा एस्पेक्ट हो। वो विद इन 2 भी हो सकता है, विद इन 3 भी हो सकता है, विद इन 5 भी हो सकता है। अब इसका जो एग्जाम्पल है वो ये है कि रिलेशन बिटवीन फर्टिलिटी एंड मोरालिटी, या फिर स्ट्रेस लेवल कंडीशन आपने चेक करना है और हार्ट अटैक का। मतलब ये है कि स्ट्रेस लेवल वर्सेस हार्ट अटैक। या फिर अगर नेक्स्ट हम लोग एग्जांपल देना चाहे तो मे बी पॉसिबल होगा कि कैंसर डिजीज़ वर्सेस कोरोना वायरस डेथ। मतलब ये है कि कितने लोग कैंसर डिजीज़ से मर गए हैं, उनकी डेथ वाक़या हो गई है, या फिर कितने लोगों की कोरोना वायरस की वजह से डेथ हो गई है। उसका ये फिर पॉसिबल है कि इसका इम्पैक्ट कौन से कंट्री में ज़्यादा था, कितने टाइम में ज़्यादा था, इफ़ेक्टिविटी कितनी थी, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर हम जब रिलेशन की बात करेंगे तो हम जाएंगे को रिलेशन स्टडी की तरफ। नेक्स्ट है हमारे साथ ऑब्जेक्टिव का नेक्स्ट टॉपिक है एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। ये नाम से ही जाहिर है, जो हम बेसिकली चीज़ों को एक्सप्लेन कर सके, विच अटेम्प्ट टू लाइक क्लेरिफाई why and how and what is the relation between two aspect of a situation। मतलब ये है कि स्ट्रेस का और हार्ट अटैक का, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका स्ट्रेस बढ़ जाता है तो कितने चांसेस है कि आपको हार्ट अटैक का दौरा भी पड़ सकता है। या फिर जो लोग डायबिटिक होते हैं, शुगर जिसको हम लोग कहते हैं यूजुअली, तो ब्लड प्रेशर का, बीपी का और शुगर का आपस में रिलेशन क्या है। आप लोगों ने अगर सुना हो, ऑब्वियसली दिस इज़ ऑलमोस्ट द एमएस लेवल, पायलट स्टडी जिसको हम लोग बोलते हैं, या फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी स्टडी जो है वो बेसिकली इज़ अ पार्ट ऑफ ए एक्सप्लेनेटरी रिसर्च का ही वो एक हिस्सा होता है। ठीक है ना जी। अच्छा, लास्ट में हमारे पास है इंक्वायरी मोड। इंक्वायरी मोड में फिर हमारे पास दो टाइप्स है, एक है क्वांटिटेटिव, नेक्स्ट है हमारे पास क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव जो होगा ये हमारे पास स्ट्रक्चर्ड होगा, और क्वालिटेटिव जो होगा वो हमारे पास अनस्ट्रक्चर्ड अप्रोच होगा। ये नंबर 1 फ़र्क है दोनों के बीच में। और सेकंड जो है क्वांटिटेटिव जो होगा, ये हमारे पास प्री डिटरमाइंड वे होगा। मतलब जो हम लोग मेथडोलॉजी इम्प्लीमेंट करेंगे वो ऑलरेडी डिराइव भी हुई होगी, वैलिडेट भी हुई होगी, और उसका कैलिब्रेशन भी मतलब हुआ होगा। इसको हम लोग बोलते हैं कि रिजिड मेथडोलॉजी या फिर रिजिड लिमिटेशन। लेकिन जब हम क्वालिटेटिव की जब हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास फ्लेक्सिबल मेथडोलॉजी होगी, मतलब ओपन मेथडोलॉजी भी हम उसको कह सकते हैं। और क्वांटिटेटिव में हम लोग अप्लाई करते हैं या एड्रेस करते हैं वाइड रेंज इश्यूज़ को, और क्वालिटेटिव में हम लोग अप्लाई करते हैं फ्यू केसेस को, मतलब जिसकी हमारे पास लिमिटेशन हो। आई होप कि हर किसी को थोड़ा सा आइडिया। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास के व्हाट कंस्टिट्यूट ए रिसर्च टॉपिक।
बनता कैसे हैं सिंपल से अल्फाज में। जब हम लोग जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं उन सवालों के जिनका जवाब अभी तक किसी ने ढूंढा ना हो, तो ये भी एक रिसर्च का हिस्सा है। ठीक है ना, वो कुछ कंसर्न भी हो सकती है, क्वायरीज भी हो सकती है, या फिर स्टेटमेंट ऑफ इंक्वायरी भी हो सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास दैट हाउ टू सेलेक्ट ए रिसर्च टॉपिक। अब देखो सवाल ये है कि रिसर्च टॉपिक को जैसे मेरा इस सेमेस्टर में एम होगा कि हर एक बंदा एटलीस्ट ही शुड बी एबल टू कंप्लीट और कम अप विद हिज फाइनल प्रपोजल। ठीक है, कि ताकि आप लोगों का फिर टाइम सेव हो जाए। अच्छा, तो उसमें फिर क्या होगा कि जो हमारी पर्सनल इंटरेस्ट होगी या फिर सोशल प्रॉब्लम होंगे। देखो सिंपल सी बात यह है कि रिसर्च प्रॉब्लम या रिसर्च टॉपिक को सेलेक्ट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज जो होती है वो आप लोगों को मिलेगी किताबों से या फिर रिसर्च आर्टिकल से। और हमारे जो प्रॉब्लम्स होंगे उनकी फिर यूनिकनेस भी होती है, हमारे प्रॉब्लम यूनिक होंगे। नेक्स्ट स्टेप है आपके पास उसकी मेथडोलॉजी का, कि आप कौन सा मेथडोलॉजी, कौन सा सॉफ्टवेयर मॉडलिंग टूल वगैरह वगैरह, या कौन सी आपके एक्सपेरिमेंटल के स्टेजेस हैं। तो ये सब मिला के आपका एक रिसर्च टॉपिक बनता है। ठीक है ना। जैसे हम लोग ना यूजुअली जब मैं पीएचडी कर रहा था तो बहुत सारे लोग हमसे यही पूछते हैं दैट प्लीज़ टेल मी विद इन 20 सेकेंड दैट व्हाट इज़ द एम ऑफ योर रिसर्च वर्क। तो फिर एटलीस्ट आप लोग बता सको, अगर आप लोगों से कोई पूछना चाहे कि आपका रिसर्च का एम क्या होगा और हाउ यू गना एड्रेस। अच्छा, अब सेलेक्ट जब हम लोग टॉपिक करते हैं तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोग को ये होना चाहिए कि जो काम आप लोग कर रहे हो ना एटलीस्ट आपको कुछ चीज़ें, कुछ उसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। नंबर फर्स्ट, लाइक इंटरेस्ट क्या है आपका। अब जैसे मेरा फील्ड है थोड़ा बहुत ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग इंजीनियरिंग का। अब अगर कोई मुझसे कह दे कि आपने काम करना है यहाँ पर जियोटेक का या फॉर एग्जांपल किसी भी और चीज़ का, ठीक है ना, तो मैं शायद वो काम न कर सकूं क्योंकि वो मेरी एक्सपर्ट ही नहीं है। और नेक्स्ट ये है कि जो मटेरियल होगा मेरे पास, हेल्पिंग मटेरियल, वो भी मेरे पास अवेलेबल नहीं होगा। तो आप लोगों ने जो भी टॉपिक सेलेक्ट करना हो, फर्स्ट मेक श्योर कि उसका आपके साथ लिटरेचर रिव्यू हो, लिटरेचर डेटा हो, बुक्स हो, किताबें हो, आर्टिकल हो, उस पर ऑलरेडी कुछ ना कुछ काम हुआ होगा। क्योंकि ज़ीरो से स्टार्ट करना किसी भी काम को वो बहुत ही मुश्किल काम है। तो और नेक्स्ट है कि उसका कुछ ना कुछ मतलब यह है कि मैनेजेबल हो। मैनेजेबल का क्या मतलब है कि आप उसको कर सको सिंपल से अल्फाज में। और नेक्स्ट ये है कि उसकी मीनिंगफुल का मतलब ये है कि क्या हम उसको फिर अप्लाई कर सकते हैं। देखो बहुत सारे लोग काम करते हैं और उसका फिर कोई भी रिटर्न एप्लीकेशन नहीं होता। तो कोशिश कीजिए कि आप लोग अप्लाइड रिसर्च की तरफ आ जाइए, जिसको हम लोग अप्लाई कर सके किसी की लाइफ पर उससे बेहतर हो जाए। ठीक है ना। और विच इज़ आल्सो यूज़फुल टू अदर, और आप उसको विलिंग हो कि आप उसको शेयर कर सको। ऑब्वियसली मतलब ये है कि अगर आपका बहुत काम अच्छा होगा देन यू विल ऑब्वियसली गो विद द पब्लिकेशन स्टेज। अच्छा, अब रिसर्च प्रपोजल क्या है। देखो ये स्पेसिफिकली आप लोगों के लिए मैंने एक एक्स्ट्रा स्लाइड डाल रखा है ताकि अभी से लेक्चर नंबर 2 3 से आप लोग शुरू हो जाए। नंबर फर्स्ट तो ये है कि आप लोग प्रपोज किया कर रहे हो, नंबर फर्स्ट, और आप लोगों ने उसको फिर कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू कैसे करना है, तो ये एक सेकंड सवाल है। और थर्ड होगा कि वाई यू सेलेक्टेड द प्रपोज्ड स्ट्रेटेजी, किया यही सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, आपके नॉलेज के मुताबिक। और ये फिर कुछ इसेंशियल एलिमेंट्स है, और फिर आप लोगों ने इसको एक चेक लिस्ट बनाना है, बिल्कुल चेक लिस्ट, ताकि फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेटमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव क्या है, अगर आपको उसका आइडिया हो देन यू शुड गो विद दैट। और फिर आपका लिस्ट ऑफ हाइपोथेसिस, मतलब मेथडोलॉजी आपकी कौन सी होगी। और नेक्स्ट ये है कि द स्टडी डिज़ाइन जो आप प्रपोज कर रहे हो उसकी आप डिज़ाइनिंग कैसे करोगे, उसके लिमिटेशन क्या होंगे, कौन से आपको रिसर्च इंस्ट्रूमेंट चाहिए, क्या वो पॉसिबल है, क्या उनकी एक्सेस पॉसिबल है, क्या उसको हम लोग रियल में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ये फिर आपकी रिसर्च का हिस्सा होंगे। अच्छा, ये बहुत ही सिंपल सा है कि व्हाट क्वेश्चन डू यू हैव अबाउट द टॉपिक। नंबर फर्स्ट तो ये है कि देखो हम लोग वो काम करना चाहते हो जो अभी तक किसी ने की नहीं हो।
अभी तक किसी ने वो काम किया ना हो, तो उसके लिए मतलब ये है कि नंबर फर्स्ट हमारा जो स्टेज है, हम किसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व उसको सॉल्व करना चाहते हैं। तो फिर सेकंड क्लास आपकी आती है, सेकंड लेवल आपका आता है कि आपने फिनानिमा, आपने स्टेज को, बैकग्राउंड को एक्सप्लेन करना होगा, जिसके बेस पर आपने जाना होगा। जैसे मैंने आप लोगों को पिछले स्लाइड में बताया था कि रिसर्च ही इसको हम लोग कहते हैं कि अगर कोई ऑलरेडी ट्रेवल फ्रॉम 1 to 18 स्टेज, और आपने जाना है 19 स्टेज की तरफ, तो मतलब ये है कि सबसे पहले आपको 18 स्टेज तक पहुंचना है। तो 18 के बाद ही फिर आपने 19 के ऊपर देन यू कैन प्रोसीड। अब इसका ये मतलब तो नहीं है दैट यू कैन नॉट जंप डायरेक्टली फ्रॉम 1 to 19, ठीक है ना। और नेक्स्ट ये है कि कौन सी तेवरी आप यूज़ करोगे, या कौन सी फॉर एग्जांपल लैंग्वेज, या कहाँ से आपने डेटा कलेक्ट करना है। और नेक्स्ट ये है कि डिमॉन्स्ट्रेट दी ट्रूथ के, मतलब ये है कि जब हम वो काम करना शुरू कर दें। आई हैड अ प्लेजर टू रिव्यू मोस्ट ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ द डिफरेंट यूनिवर्सिटी इन द लास्ट 1 ईयर। तो उसमें बहुत सारे लोग जो होते हैं वो कंक्लूजन में बहुत ही अपनी तरफ से स्टेटमेंट दे देते हैं, अपनी तरफ से वो लोग रीडिंग दे देते हैं। तो देखो, मेरे लिए उनको फाइंड आउट करना, या किसी भी टीचर के लिए उनको फाइंड आउट करना, वो बहुत ही इजी है। लेकिन ये है कि मेरा ये मानना है, या मेरा ये अपना एक माइंड है कि वाई यू आर गोइंग टूवर्ड्स लाइक फच टाइप ऑफ अ डेटा, जिसकी कोई एविडेंस ही ना हो, जिसको आप फिर वैलिडेट ही नहीं कर सकते। अब फॉर एग्जांपल, आप अगर एक ऐसे स्टेटमेंट के साथ आप लोग आ जाए अपने कंक्लूजन में, जिसका कोई बेस ही ना हो, तो फिर आप लोग ही फंसोगे, ठीक है ना। तो देयर शुड बी डिमॉन्स्ट्रेशन विद द ट्रुथ। अच्छा, नेक्स्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लिमिटेशन होनी चाहिए आपकी रिसर्च में। देखो, आप हर एक चीज़ पर यू कैन नॉट फोकस, यू कैन नॉट एक्सप्लेन, यू कैन नॉट डू ईच एंड एवरीथिंग। तो आपने एक ही स्पेसिफिक लाइन में जाके एक स्पेसिफिक इशू को ही आपने टच करना है। तो इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आपने लिमिटेशन को ठीक करना है। अब जैसे, अब अगर मैं ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्किंग पर अगर मैं पेशावर के लिए काम करना चाहता हूँ, तो सबसे पहले तो ये है कि मैंने नेटवर्क की डिफिनीशन को, उसका जो एरिया होगा उसको मैंने लिमिट करना होगा। या फिर मैंने ये स्पेसिफिकली बताना होगा कि इस नेटवर्क की जो टोटल फॉर एग्जांपल लेंथ है वो 30 किलोमीटर है, मैं सिर्फ 1 किलोमीटर को ही कंसीडर कर रहा हूँ, और इसमें मैं ये सारे एस्पेक्ट जो है इनको मैं कंसीडर कर रहा हूँ, बाकी से मेरा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। तो आपने बताना होगा कि आपने कौन से कंस्ट्रेंट को, कौन से एस्पेक्ट को यू आर गोइंग टू कंसीडर, ठीक है ना, इक्विपमेंट के लिहाज से। और हमेशा के लिए मैं अपने स्टूडेंट्स से कहता हूँ कि ऑलवेज थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, बट यूर थिंकिंग शुड बी इन द बॉक्स, ठीक है ना। आपकी जो अंडरस्टैंडिंग हो वो एक टॉप से हो, एक बहुत बड़े लेवल से हो, लेकिन वो फिर विद इन द लिमिट हो। देखो, हमेशा के लिए बहुत सारे लोग इस बात पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो बस इस वजह से जाते हैं कि वो, यू डोंट नीड टू गो इन द zigzag डायरेक्शन। देखो, जो आपका ऑब्जेक्टिव है उसी को आप लोगों ने एड्रेस करके, आप लोगों ने कंक्लूजन निकाल के, दैट्स इट, फिर उसको आप लोगों ने फाइनलाइज करना है। बिकॉज जितना ही आप लोग ज़्यादा zigzag मूवमेंट की तरफ, आप लोग जब उसकी पैटर्न को आप लोग फॉलो करोगे, उतना ही आप लोग ज़्यादा फंसोगे।